if we have our length which is limited means if you see these conditions, my requirement was from my RCA consideration, I required a length of 56 meter. From my RCD consideration, now when I say RCD consideration, I have taken CD as the actual CD. Actual CD हमने कितने के लिए लिया था? It is based on this is the speed I am going to permit. इसके लिए मेरी CD कितनी आ रही है? 105 kmph के लिए. So 105 kmph के लिए I have taken calculated its CD and this CD is going to be 13.76 V square divided by R is 875 minus actual cant हमने provide किया था. This cant was 100. Okay, so minus 100. So if you calculate this, ये इतना आना चाहिए 73.4 millimeter. So for this CD we calculated this as 42 meter and similarly for cant gradient. So if I provide 50, it is meeting these two conditions. इससे बड़ा है, इससे बड़ा है. But it is not meeting my RCA consideration. RCA के हिसाब से I needed minimum 56. It is only 50 meters, so it is failing in RCA. ठीक है ना? So TL required for RCA consideration for 105 kmph is 56 meter, whereas given 50 meter has become inadequate. ठीक है? So once this is the situation, what happens if you see this formula? अगर इस formula को देखें, जो पहला वाला formula है, L1 is equal to, now this is limited to 50 meter. ये सिर्फ 50 meter limited है. ठीक है ना? हमने cant इसका फिक्स कर रखा है 100 millimeter का. So as you can see, this V maximum has been restricted because of other fixed values. ये value fixed है हमारी, ये value fixed है. अगर मैं V maximum को reduce बढ़ाना है मुझे, अगर इसको बढ़ाना है तो मेरे पास स्कोप है कि मैं cant को थोड़ा कम कर दूं. अगर मैं cant को थोड़ा कम करता हूँ, ये वैल्यू इतना ही रखता हूँ, तो I can increase my maximum potential because of this limited cant. There is a scope. ठीक है ना? So for cant, V maximum will reduce and let us see this understanding. अब मुझे इसकी understanding को जरा एक बार दोबारा देखें. RCA is equal to CA into CA divided by L by V. RCA की वैल्यू ये and this is what is restricting my speed potential of the curve because of limited length of transition. Length हमारी fixed है, cant हमारी fixed है and this V हमने 105 kmph लिया and then we say कि ये मेरी RCA की वैल्यू इतनी आ रही है, right? Now in this case RCA is 55, CA is 100 and L is 50. So what I do is, अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करूं, RCA को 55 लूं, CA को 100 लूं और L को 50 लूं, my speed potential is coming as 95 kmph. इसका मतलब क्या था कि इस केस में जब हमने कर रखा था, जब ये वैल्यू मैंने ले रखी थी, so what we found is when we took a speed of 105 kmph, हमने स्पीड 105 kmph लिया, ये 56 मीटर लिया और ये 50 मीटर लिया, तो हमने पाया कि 50 मीटर इज inadequate because I require 56 मीटर. अब मेरे पास एक स्कोप दिख रहा है कि अगर मैं स्पीड को कम कर सकता हूँ, ठीक है ना? स्पीड को मैं कम करता हूँ, ये अगर 50 है तो मैं ये स्पीड को यहाँ पर रिड्यूस करना मुझे मतलब वेलोसिटी रिड्यूस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लिमिटेड वैल्यू ऑफ माय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन एंड दिस इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट माय स्पीड. और 50 मीटर के लिए व्हाट आई फाइंड, इफ आई कैलकुलेट दिस, इट सेज दैट योर स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड टू, अगर RCA को 55 ले लेते हो, cant इतना ले लेते हो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इतना लेते हो, सो 50 मीटर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन के लिए मेरी V की वैल्यू it becomes 99 kmph for RCA of 55 millimeter per second. So what we are going to provide is permit a speed of 95 kmph. So instead of providing a speed of 105 kmph, which is the speed potential of the circular curve, because of my limited length of transition, because of the problem with RCA, I cannot provide speed more than 95 kmph. मैं 95 kmph से ज़्यादा का स्पीड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ because my length of transition is limited. So suddenly from 105 kmph my speed potential has reduced to 95 kmph. 95 kmph पे ये reduce कर गया because of limited length of transition. Now the solutions to this problem are, ये छोटा सा इस तरह के, ये तो बहुत ही कम अंतर है बट कई बार बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा.
सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है. सो व्हाट वी फाउंड इज सर्कुलर कर्व का स्पीड पोटेंशियल 105 है, बट ट्रांजिशन लेंथ जो है इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द स्पीड टू 95 kmph बिकॉज ऑफ योर RCA लिमिट. RCA में ये फेल कर रहा है, कई जगह RCD में फेल कर सकता है, किसी और में फेल कर सकता है, बस इन दिस केस इट इज बिकॉज ऑफ RCA लिमिट, राइट. सो द सॉल्यूशन इज, अगर मैं कैंट को रिड्यूस करता हूँ, यहाँ पर मेरी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन मेरी फिक्स्ड है, अब मैं कहता हूँ मैं थोड़ा कैंट को रिड्यूस करता हूँ, ये मेरी 50 मीटर है, वी मैक्सिमम मैंने यहाँ 95 कैलकुलेट किया है फॉर दिस, ये कैंट हमारी 100 थी, अगर मैं कैंट को रिड्यूस करता हूँ तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आई कैन इंक्रीज दिस स्पीड पोटेंशियल, इसको मेरे पास बढ़ाने का थोड़ा स्कोप होता है. सो द ट्रांजिशन लेंथ विच इज रिस्ट्रिक्टिंग माई स्पीड, अगर मैं सर्कुलर कर्व के कैंट को आई रिड्यूस द कैंट इन द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व, माई स्पीड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन इज गोइंग टू इंक्रीज, बट सर्टनली इट विल हैव टू इम्पैक्ट्स. वन इज the speed potential of circular curve is going to reduce because so we have three speed potential. One is of circular curve, one is for transition length because of RCA, and third one is transition length because of RCD. तो अगर मैं इसको V1 मानूं, इसको V2 मानूं और इसको V3 मानूं, ये तीन चीज हमारे स्पीड पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि जब कैन ग्रेडियंट की बात करते हैं उसमें स्पीड कहीं आता ही नहीं है, बट RCA में आता है, RCD में आता है और वेलोसिटी इन सर्कुलर कर्व में आता है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच इज फाइनली गोइंग टू डिसाइड माय स्पीड पोटेंशियल ऑफ द कर्व, RCA, RCD एंड नेचुरली द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व. सो द मोमेंट आई फॉर सिंस आई एम लिमिटेड बाय दिस RCA, मैंने इसके फार्मूला को देखा, मुझे लगा अगर मैं कैंट को थोड़ा रिड्यूस कर दूं तो आई कैन इंक्रीज द स्पीड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस RCA लिमिट, ठीक है ना. बट जैसे ही मैं कैंट को रिड्यूस करता हूँ, मेरी सर्कुलर कर्व की स्पीड पोटेंशियल भी कम हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी इन सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व इज 0.27 स्क्वायर रूट ऑफ R इंटू CA प्लस CD. सो ये CA कम हो जा रही है, जैसे ही CA कम हो जा रही है तो इसकी भी स्पीड पोटेंशियल कम हो जा रही है. दूसरा इंपैक्ट क्या रहा, व्हाट अबाउट CD, जैसे ही आप कैंट कम करते हो योर CD इज नॉर्मली इंक्रीजिंग, आपकी CD इंक्रीज कर जाएगी. सो कैंट डेफिशिएंसी, कैंट कम किया तो कैंट डेफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर जाएगी. जैसे ही कैंट डेफिशिएंसी इंक्रीज करेगी और रिवाइज कैंट, बिकॉज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी और वेलोसिटी इज गोइंग टू रिड्यूस, सो ये भी रिड्यूस करेगा. सो RCD वाला रिड्यूस करेगा वेलोसिटी, ये वाला रिड्यूस करेगा और ये इंक्रीज करेगा. तीन इंपैक्ट होने वाला है. मैं इसको दोबारा एक ग्राफ में बना के इसमें बना के दिखाता हूँ. आई डोंट नो वेदर आई कुड एक्सप्लेन माय पॉइंट और नॉट, बट लेट मी जस्ट अगेन रिपीट दिस. नाउ इन अ कर्व, जब मैं सर्कुलर कर्व की बात कर रहा हूँ, सो ये मेरी सर्कुलर कर्व है, दिस इज माय ट्रांजिशन लेंथ, दिस इज आल्सो माय ट्रांजिशन लेंथ, और यहाँ मैंने कुछ कैंट प्रोवाइड कर रखा है, दिस इज माय R. नाउ वंस दिस इज वेलोसिटी V1, ये दोनों मैं एक मानता हूँ, ये V2 है, और सॉरी ये V1 मानता हूँ, यहाँ पर V2 एंड V3, ये दो वेलोसिटी है. V1 जो है इट इज बिकॉज ऑफ योर कैंट सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व, और ट्रांजिशन की वजह से RCA and RCD, these are going to decide your speed potential of transition, because RCA हमने क्या देखा था, RCA was CA by L by V, RCD was CD by L by V. So CAV, CDV are interrelated. तो अगर RCA RCD में V आता है, आपका वेलोसिटी आता है, so they are going basically guiding your speed potential. स्पीड पे काफी कुछ डिपेंड कर रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कितना चाहिए, और वी कैन से अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन मालूम है तो स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो सकता है या ज्यादा हो सकता है. सो बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना. तो अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने देखा कि RCA की वजह से मेरा लिमिट हो रहा है, सो लेट मी रिड्यूस द कैंट. अगर मैं कैंट रिड्यूस करता हूँ तो आई कैन इंक्रीज दिस V2, ये वेलोसिटी में इंक्रीज कर सकता हूँ, विच यू कैन सी हियर 95 से मैं ज्यादा कर सकता हूँ इसको वेलोसिटी. बट द मोमेंट आई रिड्यूस माई कैंट, my velocity of circular portion of the curve is also going to reduce, and my velocity because of RCD is also going to reduce. So it is the balance between these three which is going to give me the best speed potential. कैंट अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो जैसे यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला को दोबारा अगर लिखूँ, यू कैन जस्ट सी दिस, RCA इज इक्वल टू कैंट डिवाइड बाई L बाई V. इसको मैं लिख सकता हूँ V इंटू कैंट बाई L, और V is equal to RCA into L by cant. So the moment I reduce the cant, इसको जैसे मैंने कम किया, मेरा वेलोसिटी
बढ़ गया। उसी तरह वेलोसिटी RCD पे कैसे डिपेंड कर रहा है, RCD इंटू L बाई CD। जैसे मैंने CD इंक्रीज किया वेलोसिटी मेरी घट गई, ठीक है। सो कैंट जैसे ही मैं रिड्यूस करता हूँ, बिकॉज ऑफ RCA माई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट बिकॉज ऑफ RCD माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड दीज टू विल बी इक्वल व्हेन CA इज इक्वल टू CD। अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि CA बिकम्स इक्वल टू CD, देन दिस V2 विल बिकम इक्वल टू V3, क्योंकि दोनों फार्मूला में CA CD जो है यही डिफरेंस है, RCA RCD में दोनों का सेम लेता हूँ। सो इफ effectively my CA becomes equal to CD, my speed potential of transition will be maximum, जो मैं अचीव कर सकता हूँ अगर मैं RCA RCD को इस तरह से डिजाइन करूँ, सॉरी CA CD को इस तरह से डिसाइड करूँ कि मेरी ये दोनों वेलोसिटी सेम आ जाए, तो मेरी स्पीड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो इस कंसेप्ट को देखते हुए मैं क्या करूंगा, मैं कैंट को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, so that I can achieve the best possible speed potential of my curve. क्या करेंगे इसमें? Let me come to next slide. So best speed due to limited TL can be obtained when my speed because of length of transition because of my RCA, जैसे reduce अगर मैं कैंट को reduce करता हूँ, ठीक है ना, so V1 will increase, V1 is because of my RCA, और जैसे ही मैं कैंट को रिड्यूस करता हूँ ये CD इंक्रीज करेगा, V2 मेरी डिक्रीज कर जाएगी, ये मेरी V2 डिक्रीज कर जाएगी, तो ये तो इंक्रीज करेगा बट मेरी V2 डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। बोथ विल बी बैलेंस्ड ओनली व्हेन CA becomes equal to CD, CA becomes equal to CD. In that case both the speed potential of transition because of RCA and RCD will be same. So for getting best potential of this we will have to go for CA is equal to CD, ठीक है। In addition to that, overall best result will be obtained when velocity in circular portion of the curve is equal to the maximum velocity that is achievable in transition portion of the curve. That means अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो मैंने कहा कि CA is equal to CD. This is for maximum speed over transition, ठीक है ना। तभी मेरा RCA RCD की वजह से, दोनों की वजह से बराबर स्पीड आएगा, और ये ट्रांजिशन के लिए हो गया। एंड सेम स्पीड आई वांट इन सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व, दैट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, कि दोनों बिल्कुल लिमिटिंग सिचुएशन में आ जाए। आई वांट टू कैलकुलेट द कैंट जिसपे कि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फॉर सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व माय स्पीड इज 0.27 स्क्वायर रूट ऑफ आर CA प्लस CD, बट आई सेड CD इज इक्वल टू CA, ये CD है बट दिस इज इक्वल टू CA, एंड दिस इज एज पर योर RCA जो स्पीड पोटेंशियल आती है, RCA इज CA बाई V बाई L। इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं, ये मिलीमीटर में रखूं, V किलोमीटर पर आवर में है, इसको मैं कर देता हूं 1000 30 डिवाइडेड बाई 36, सॉरी एक मिनट, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ते रहती है आपको सॉल्यूशन के टाइम में। So I'll just RCA is equal to cant divided by L by V. Cant is in millimeter, L is in meter में है, and V is in kilometer per hour. So this will be divided by 3600, ठीक है ना। इसमें ये 3 0 काट दिया, ये 3 0 काट दिया, 3600 को यहाँ ऊपर कर दिया, तो this becomes CA divided by into V divided by 3.6 into L. So V becomes equal to 3.6 into L into RCA divided by cant. ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। सो बिकॉज ऑफ RCA ये जो वेलोसिटी आ रही है, कैंट हमने CA मान लिया है, सो इसके लिए हमारी वेलोसिटी पर मीटर ट्रांजिशन में मैक्सिमम इतनी आ रही है, और यही वेलोसिटी मैं सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व में लेना चाह रहा हूँ फॉर दिस कैंट। आई वांट टू बैलेंस दीज टू, और उसके बाद फिर मैं CD के लिए इसको चेक कर लूँगा। तो हमने ये जब निकाला, तो दिस कैंट आई एम गोइंग टू गेट, अगर मैं इसको वैल्यू को डालूँ इसमें, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज आई कैन रिड्यूस द कैंट टू 90 मिलीमीटर, एंड दिस 90 मिलीमीटर इज गोइंग टू गिव मी
the speed potential where my speed of circular curve is going to be same as my speed on transition because of RCA. So पहले मेरा कैन था 100 मिलीमीटर, इसको मैंने रिड्यूस करके 90 मिलीमीटर किया, एंड इफ आई फाइंड द स्पीड पोटेंशियल, सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व की स्पीड 105 से घट करके 102.59 आ गई बिकॉज आई हैव रिड्यूस द कैन, सो आई कैन परमिट 100 kmph बिकॉज ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व. और इस स्पीड के लिए फिर मैंने चेक किया कि मेरी कैन डेफिशिएंसी कितनी आ रही है. मेरी कैन डेफिशिएंसी 67.257 आ रही है इफेक्टिवली. सो स्पीड बिकॉज ऑफ RCA is coming as 110 kmph. RCA मैंने 50 लिया. Speed because of RCD, this is coming as 147.19, इतना लिया. So what I find is my speed is minimum of these three, and this comes as 100 kmph. So I can permit now 100 kmph instead of 95 kmph. ये actually 102.59 आ रहा है since I am talking of multiple of 5. So I am providing a speed of 100 kmph. So what happened? Initially my speed potential जो पहले हमने दिखाया था, if I had sufficient transition length, my speed potential was 105 kmph. But because of limited transition length, my speed potential reduced to 95 kmph. This was maximum we could achieve. अगर मैं कैंट को modify कर देता हूँ, I can go speed up to 100 kmph. This is what we did. Yes. Oh. ये कुड यू समझ में आया कुछ जो मैंने किया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो गया लगता है, बट कुड यू अप्रिशिएट क्या किया मैंने? आई विल जस्ट रिपीट व्हाट आई डिड. यस मैं थोड़ा यस सर, रिपीट वन. क्लियर हो गया? ठीक है. तो बट आई विल जस्ट रिपीट फॉर फ्यू पीपल हु कुड नॉट अप्रिशिएट. हमने क्या किया? अल्टीमेटली व्हाट आई डिड वाज, व्हाट आई फाउंड वाज, मेरी एक कर्व दी हुई है, उसकी एक रेडियस है, उसकी एक कैंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन ही मुझे मालूम है, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन मुझे मालूम है. तो मैंने ये पाया कि अगर मैं कर्व के मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल पे जाता हूँ तो मेरी यहाँ की ट्रांजिशन लेंथ इनएडिक्वेट है. सो दिस वाज ओनली 50 मीटर whereas I required minimum 56 meter. So since my transition length is restricted to 50 meter, so I calculate इसकी एक स्पीड पोटेंशियल आ रही थी मैक्सिमम CD देने के बाद 105 kmph आ रही थी. और जब मैं 50 मीटर ट्रांजिशन लेंथ लेता हूँ और ट्रांजिशन लेंथ की स्पीड पोटेंशियल निकालता हूँ, दिस वाज कमिंग एज 95 kmph. ये 95 kmph आ रहा है. लेट मी जस्ट शो यू द कैलकुलेशन अगेन. So this is the calculation. What we found is we got the speed potential of 95 kmph because of limited length of transition. So naturally my curve speed potential is not 105 kmph, it is only 95 kmph. So circular curve का 105 आ रहा है, transition is permitting 95. So we will have to see whether we can do some modification, and changing cant is the easiest thing you can do. Cant को change करना बहुत ही आसान है. You take your machine, simply say कि मुझे यहाँ से यहाँ तक कैंट इतना चाहिए, it will achieve that cant. So changing cant is nothing. इसमें कोई शिफ्टिंग कुछ नहीं होता है. सिर्फ आपको अगर ज़्यादा कैंट है तो नीचे वाले रेल को उठाना है, अगर कम कैंट है तो ऊपर वाले रेल को उठाना है. So changing cant is the easiest thing you can think of. So this is what happened. इसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से ये 95 kmph आ रहा था. Now what we find is if I reduce the cant, I can increase this 95 kmph, but simultaneously this value will reduce. So we decided कि एक बैलेंसिंग सिचुएशन लेकर के आते हैं so that I get the maximum potential overall. क्योंकि एक पार्ट का भी स्पीड पोटेंशियल कम है तो ओवरऑल आई एम गेटिंग द स्पीड पोटेंशियल. सो व्हाट आई डिड वाज आई रिड्यूस द कैंट. सो व्हेन आई रिड्यूस द कैंट, इसकी स्पीड मैंने 100 कर दी और इसकी स्पीड बढ़ करके हमारी 110 चली गई. जो हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन CA is equal to CD to get the maximum speed on my circular portion of the curve and transition portion of the curve. ये कंसेप्ट को हमने यूज किया, CA is equal to CD. So speed on circular and speed on transition was balanced. इन दोनों को मैंने बैलेंस किया. And then what I find is if I provide a cant equal to 90 millimeter instead of 100, ये अगर मैं 90 प्रोवाइड करता हूँ instead of existing 100, I can increase the speed potential of the curve. So मैंने 5 की स्पीड पोटेंशियल सिर्फ कैंट को रिड्यूस करने पे ही मैंने अचीव कर लिया. मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा, विच इज द इजीएस्ट थिंग. तो अगर आपके सेक्शन में कहीं पर ये सिचुएशन आ रही है, कई बार आप देखोगे 10 kmph तक चेंज हो जाता है सॉफ्टवेयर में. जब आप ट्राई करोगे उसको, आप देखना अगर आपने कैंट गलत प्रोवाइड कर दिया है. एक केस में किसी का देख रहा था, उसमें इतनी आई थिंक दैट इंक्रीज बाय 15 km/h, उसने कैंट ही गलत प्रोवाइड कर रखा था पूरे सेक्शन में. कभी किसी ने कैलकुलेट किया होगा
आज के डेट में सिचुएशन पूरी चेंज हो गई थी उसकी, एंड ही वाज स्टिल कैलकुलेटिंग फॉर द सेम कैन, तो उसने कैन को मॉडिफाई नहीं किया. इफ यू मॉडिफाई द कैन यू कैन इंक्रीज द स्पीड पोटेंशियल, और कई बार रिड्यूस करने पे स्पीड पोटेंशियल बढ़ जाता है. जैसे इस केस में क्या दिख रहा है कि 100 से मैं 90 आई कुड इंक्रीज द स्पीड पोटेंशियल बाय 5 kmph. ठीक है ना. So this is the conclusion. So speed increase to 102.59, that is 100 kmph, by reducing can from 100 millimeter to 90 millimeter. Now this calculation, otherwise ये जो calculation है, this all these things आपको बार बार करना पड़े तो कई लोग they are not very comfortable. So what Edison has done, what we have done is we have developed one software which is loaded at Edison website, और ये भी 3-4 दिन पहले लोड हुआ है. So I'll just show you that software. Edison website पे you go to Edison website और आपको दिखेगा कि एक सॉफ्टवेयर अभी 3-4 दिन पहले लोड हुआ है, curves, और you will see that name. So this is your curve software. The moment you will open this, you will get this kind of screen. ये दिख रहा है ये screen? Yes. Yes, sir. Okay. So if you see this curves, design, speed potential, increasing speed and shift, ये सारा कुछ दे रहा है कितना शिफ्ट हो रहा है कर्व अगर आप स्पीड पोटेंशियल. So coming to first part, designing a new curve. The moment you click this first part, you are going to design a completely new curve. When you are going to design a new curve, you keep the audio on and kindly switch off your audio. Kindly switch off your audio. Right. Mr. Surendran, yes, switch off your mic. Okay. Okay, so if you see this software, on the first side there is a requirement. So what is the radius of your section? So you will say, okay, it is 875. Hello, V maximum हमने कहा कि my V maximum is 120 kmph मेरे सेक्शन का, and V minimum is I said 65 kmph. मेरी कुछ की स्पीड है. This is not currently telling you about equilibrium speed. ये V maximum और V minimum के टर्म में पहला कैलकुलेशन करेगा आपके लिए, and you say CD is 100 and less. There are other limiting values. You can change these values. सारे values आप change कर सकते हो. Maximum can कितना है, minimum maximum TL limits क्या है, so RC RCD की limit है, ये सारे limits इसमें दिए हुए हैं. And then you go to compute. The moment you compute, you can see it is giving you speed potential of VPRM is equal to 120, cant is 130, length of transition is 130, length minimum is 80, and it says that CD is, ये CD की वैल्यू बता रहा है कि अगर आप इतना कैंट प्रोवाइड करते हो, योर CD is 96.771, 63.465 कैंट एक्सेस. ठीक है ना. कैंट ग्रेडियंट कितना आ रहा है, लिमिटिंग केस में कितना, ऑल दीज वैल्यूज हैज बीन गिवन. इस केस में नीचे एक सजेशन दे रहा है, ये कह रहा है you can optimize this cant. अभी क्या है कि CD is 96.771 and CX is 63.465. It says that you can optimize the cant between so that you can balance CD and CX. अगर आपको लगता है कि CD CX दोनों को बराबर रखो, why to provide more cant access, then you can decide some equilibrium speed जिसके लिए आप cant provide करोगे without compromising on the speed potential. So what I did, मैं इसको यहाँ click करता हूँ. The moment I click, a new section has opened. On the right side, new section has opened. This was my requirement. This is my V maximum and CD for passenger. ये सारी डिटेल्स यहाँ दे रहा है. मैंने कहा कि मैं किसी इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए इसको डिजाइन करना चाहता हूँ, तो दैट इक्विलिब्रियम स्पीड सपोज आई टेक इज 100 kmph. मैंने 100 के लिए इसको प्लान किया. ठीक है. द मोमेंट आई राइट 100, सेम कर्व विल बी रीडिजाइन, एंड यू कैन सी इसमें क्या हो रहा है कि CX आपका ज्यादा हो रहा है, सो इट इज नॉट परमिटेड. चेंज दिस, मेक इट 80 kmph. He calculated. Yes, now this is okay. So now if you provide this, पहले में आपका अच्छा, but speed has reduced. Speed reduce हो जा रहा है. So let us provide 90. So it is completely a hit and trial thing. आप जो provide करना चाहते हो, it will give you the result. जब आपने 90 provide किया, now let us see ये आपका same result दे रहा है. इसमें कोई ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ रहा है. तो in this case, ये आपकी CD and CX में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. 90 के लिए आपने प्रोवाइड किया. यू कैन जस्ट सी इफ आई प्रोवाइड फॉर 85, लेट मी सी कुछ अगर मॉडिफिकेशन ही करता है कि नहीं. यस, इट डिड सम मॉडिफिकेशन. अगर आप 85 के लिए प्रोवाइड करते हो, बट ये आपकी मैक्सिमम स्पीड घटा दे रहा है. ठीक है ना. तो यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि आप क्या करना चाहते हो. नॉर्मली यू आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द स्पीड फ्रॉम वी परमिटेड. सो नॉर्मली द इनिशियल डिजाइन दैट वाज सजेस्टेड बाय दिस सॉफ्टवेयर वाज फाइन. यही इसने दिया था. तो वी इक्विलिब्रियम अगर 90 पे लेते हो तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. ये करीब सब जगह सेम आ रहा है.
सो इसने ये रिजल्ट दे दिया आपको, तो ये रिजल्ट आपका ठीक आ रहा है. बट लेट मी गो टू अनदर सिचुएशन. ये सिचुएशन में तो बराबर आ गया, बट लेट मी चेंज दिस लिमिट. अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ एंड अगेन आई गो फॉर सेम कर्व 875 और इसको मैं 160 के लिए नाउ डिजाइन करता हूँ. And this is 65. Again I take these values and I compute this. It says that you cannot provide 160 kmph for this radius 875. आपकी स्पीड लिमिट 120 kmph पे आपको रखनी पड़ेगी. Cant इतना, length of transition इतना. So you cannot go speed for more than 120 and this is the best result possible. Best result means maximum speed and minimum cant जो आप प्रोवाइड कर सकते हो वो ये सॉफ्टवेयर आपको निकाल कर देता है कि इससे ज़्यादा आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. बट इसको मैं फिर एक चेंज करता हूँ. अब मैं इसको चेंज करता हूँ. लेट मी मेक इट एज 875, दिस एज 120 kmph. इसको मैं बढ़ा करके 75 करता हूँ. I take as 100. You can see all kind of permutation combination is possible. ये फिर करीब करीब वही रिजल्ट दे रहा है. अभी ये CD की वैल्यू 96 आ रही है. ये कह रहा है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो. लेट मी सी मॉडिफिकेशन गिव्स मी बेटर रिजल्ट. लेट मी टेक दिस एज 90 में लेता हूँ. वैल्यू दे रहा है 100 में लेता हूँ. You can see if I provide a equivalent speed of 100 kmph मैंने कर दिया तो what I find my CD and CX is almost balanced. पहले ये 96.771 आ रहा था, 41.418 आ रहा था. Now it is 66.771 and 71.418. So they are almost balanced and all these limits are satisfied. So it is your call कि आप क्या करना चाहते हो. This is giving you an option कि आप अलग अलग equivalent speed के लिए जो आपको सूट कर रहा है you can decide your cant and other values. But you can see this was the best result you were getting. But इस compromising में क्या हो रहा है कि your cant has increased from 130 to 160, length of transition from 130 to 160 and length minimum 80 to 100. So naturally it is a designer's choice. जो डिजाइन कर रहा है कि he has to decide whether he wants to limit CD and CX or he wants to limit the cant, length of transition. ये क्या करना चाह रहा हो. So when designing a new curve, this software gives you all kind of option. आप equilibrium पे करना चाहते हो, best curve निकालना चाहते हो, क्या speed potential आ रहा है. तो this is a basic part, first part जिसमें कि ये सारे information आपको दे दे रहा है. Coming to second part, इससे मैं back चलता हूँ. Second part is speed on existing curve and increasing speed. ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर पहले same type of curve लेता हूँ, 65 लेता हूँ, radius में 875 ले लेता हूँ. And I take anything, at random I take this as 60. Length of transition I also take as 60 and 60. I have taken any value. And maximum permitted CD मैंने कहा कि मैं 100 permit कर सकता हूँ. This I say I take as 1 in 720. It says this is a curve, your existing curve. जैसे हम लोगों ने एक curve लिया था, तो this is your existing curve and speed potential of existing curve. अगर निकालना है, you click this one. The moment you click this one, first it will check कि आपकी transition length cant के हिसाब से means cant gradient. क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन में आपने दे दिया, कैंट भी आपने, वेदर योर कैंट ग्रेडियंट इज फाइन और नॉट. इट सेज ओके. देन गुड्स की जो कैंट एफिशिएंसी है वो फाइन है कि नहीं, ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, गुड्स आर मूविंग एट कैंट एफिशिएंसी. इसमें क्या रहा है, जो आपने दिया है इवन गुड्स इज मूविंग एट कैंट एफिशिएंसी, जो आपने कैंट डाला हुआ है. एंड द स्पीड पोटेंशियल मैक्सिमम यू आर गेटिंग इज फॉर दिस कर्व इज 90 kmph. अब इसको ऑप्शन क्या देता है कि यू कैन, the easiest thing as I mentioned is you can change the cant to see whether I can increase the speed potential or not. तो यहाँ पर increase and decreasing cant का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है. This first part, you can see this what is written in yellow part. It says that try different cant without changing radius and length to see possibility of increasing speed. आप बढ़ा सकते हो. तो मैं increase cant करता हूँ. I increase the cant. ये दो चीज चेक करेगा. And it says yes, 90 से 95 हो गया. You can see earlier it was 90, it is now 95. I further increase. अभी 95 ही चल रहा है. Cant is फर्दर मैंने इंक्रीज किया, ये कैंट अब 75 हो रहा है, बट स्पीड 95 तक गया. फर्दर मैंने इंक्रीज किया, अब ये घट जा रहा है. यू कैन सी दिस लोअर बॉटम, ये अभी तक आप कितना मैक्सिमम अचीव किए वो बता रहा है, ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहा है. सो यू हैव गॉन फॉर कैंट 80 और यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बोलता है कि अगर आप 80 कर देते हो तो आपकी स्पीड घट जाती है, जबकि आप ऑलरेडी 95 तक अचीव कर पाए थे एट अ कैंट ऑफ 75. तो मैंने फिर इसको रिड्यूस किया. आई गो फॉर रिड्यूसिंग दिस कैंट एंड आई फाइंड कि 75 पे मुझे 95 मिल रहा है, विच इज द मैक्सिमम. फिर मैं और डिक्रीज करके देखता हूँ. लेट मी सी. मैंने देखा 70 पे भी मुझे 95 मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टू प्रोवाइड 70. देन आई अगेन डिक्रीज. मैंने देखता हूँ इवन 65 पे मुझे 95 मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर 65, व्हाई टू इवन 70. देन आई फर्दर डिक्रीज दिस.
अब मैं पाता हूँ कि मेरी ये स्पीड पोटेंशियल घट करके 90 हो जा रही है. So naturally 65 was the best option for me for getting the best speed potential. So I will decide my speed cant as 65 for this kind of parameter. So simply by adjusting cant, I can find the maximum speed potential I can achieve. You can have different type of situations. So ये simply cant change करके you can see whether I can increase the speed potential of the curve or not. This is the first part. Second easiest part is you don't change the radius of curve, but you change the transition length and cant of the curve. Cant भी change करते हैं और देखते हैं maximum कितना transition length हम provide कर सकते हैं so that to get the best speed potential. So for this curve, for same radius मैंने ये रखा, good speed 65 ही रखा. अब मैंने कहा कि मैं cant और transition length मुझे best क्या option है मेरे पास available. So you click this one. You have not changed the radius. It says that suggested transition length and cant for maximum speed on same radius. So you click this one. The moment you click this one, it says that if you can provide a cant of 130 and transition length of 130, this curve speed potential can be increased up to 120 without changing the radius. आप radius बिना change किए इसको सिर्फ transition length और cant को change करके 120 speed potential achieve कर सकते हो. And these are the limits. CX, CD सारे ये limit नीचे दिखा रहा है कि सारे within limits आ रहे हैं. So for the same radius, this is the best possibility for you. ये best curve आपको मिल सकता है. So now this is the new curve. Now these were the options that were given to you. इस वाले में सिर्फ cant change किया मतलब कोई shifting नहीं हो रही है, तो you can go only up to 95. But in this case, by changing transition length and cant, you can go up to 120 kmph. So now you have an option. You can think of a new curve of same radius or a different radius or a completely new design. कुछ भी कर सकते हो. So let me take this as the curve. ये मैंने curve मुझे लगा मुझे 120 बढ़ाना था. Why not to go for same radius? So मैंने इसी वाले डाटा को इसमें डाला है. इसी वाले को डाला मीन्स स्पीड मैंने 65 लिया गुड्स का, इसकी मैंने 875 ली एंड आई टुक कैंट फ्रॉम दिस कैंट आई टुक एज 130. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन आई टुक एज 130. CD I have taken as 100 and this I take as 1 in 720. और चूंकि ये यही वाला कर्व है तो ये स्पीड पोटेंशियल उतना ही देगा 120 का. So you will find this will give you the speed potential of 120 kmph. इसने 120 का आपको स्पीड पोटेंशियल दे दिया. So this is when I have taken my decision as per the calculation suggested by software. But मुझे लगता नहीं, मुझे इसको थोड़ा रेडियस को मैं मॉडिफाई करके देखता हूँ, मैं 150 तक जा सकता हूँ. So let me change the radius. मैं इसको रेडियस को 1 डिग्री कर्व में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1750 कर देता हूँ. And let me calculate the speed potential. It says that your speed potential now becomes 195, but cant access for goods has changed. So this data is not acceptable. आप इसको मॉडिफाई करो. आप इसको मॉडिफाई करो. अगर इंक्रीज कर रहे हो, ये कुछ गलत आ रहा है. दिस शुड नॉट हैव कम. जस्ट अ मिनट. व्हाई दिस हैज कम? ये तो नहीं आना चाहिए था. सम मिस्टेक इज कमिंग. ये नहीं आना चाहिए था. रिव्यू का ऑप्शन शुड नॉट हैव कम. I'll have to check इसको मैं, but this I'll check. But let me just tell you the software because it is a trial version which has been loaded for your comment. So maybe some issues will be coming. So one issue I can see is ये review नहीं आना चाहिए था. I should have given the final result without any review. So let us assume कि ये कुछ गलत दे रहा है. ये क्या कह रहा है? ये 135 तक जा रहा है. ये इंक्रीज डिक्रीज वाले में ये रिव्यू वाले ऑप्शंस नहीं आने चाहिए थे. ये डिक्रीज करके let me correct this. Yes, now it is fine. So अगर मैं कैंट को 105 कर लेता हूँ तो ये 155 तक जा रहा है. ठीक है ना. अगर मैं मान लो इनिशियली कैंट ये भरता नई डिजाइन कर में, इट इज गिविंग यू 155. बट व्हाट आई वांट इज कि 1750 के लिए मैं क्या बेस्ट कैंट एंड ट्रांजिशन लेंथ डालूं, क्या आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. सो आई विल अगेन गो टू दिस वन. मैंने सिर्फ रेडियस डिसाइड किया है. आई वांट दिस सॉफ्टवेयर टू टेल मी कैंट एंड ट्रांजिशन लेंथ. सो लेट मी गो टू दिस. It says that you can get a speed of 160 kmph if you provide a cant of 105 and increase the transition length to 140. So I said okay, agreed. मैं इसको यही करता हूँ. I will modify this and I'll keep this as 105. I'll keep this as 140 and then I will recalculate and what I find is this is my speed potential, right? So I have increased the speed potential from 95 जो कि cant increase करने मुझे मिल रहा था to 160 by changing the radius to 1750, cant to 105 and length of transition to 140. ठीक है ना. ये वही वैल्यू देगा जो वहाँ आ रहा था.
राइट. सो वी हैव एन एग्जिस्टिंग कर्व एंड वी हैव a new curve. So we have all kind of options. न्यू कर्व में अगर आपने डाटा कुछ अपने मन से डाला तो you have a margin to play, इंक्रीज डिक्रीज करके you can see मैक्सिमम स्पीड आप कितना अचीव कर सकते हो फॉर अ लिमिटेड ट्रांजिशन लेंथ. अगर ट्रांजिशन लेंथ में 140 की जगह मैं इससे 140 प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीजन, मुझे लगता है मैं सिर्फ 110 प्रोवाइड कर पाऊंगा. दैट कुड बी अ सिचुएशन. सो आई विल गो फॉर दिस एंड इट सेज दैट यू कैन अचीव अप टू 130. बट लेट मी सी वेदर आई कैन इंक्रीज और नॉट. मैं इसको इंक्रीज करके देखता हूँ कितना तक मैं जा सकता हूँ. ये घट जा रहा है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. कम टू रिड्यूस. Yes, I can increase up to 135. देखो डिक्रीज करने से भी बढ़ता जा रहा है. Again, I further decrease. I can increase up to 41, 45. So you can see simply by decreasing cant, I am increasing this and I am getting up to 145. Further I decrease, I have gone up to 150. So simply by reducing cant, मैंने जो cant लिया था, मैं reduce करता करता सिर्फ 150 तक already पहुंच चुका हूँ. Let me reduce that. नहीं, अब नहीं हो रहा है. So maximum I can go up to 140. So this is the best bet for me. ये 150 आ रहा है. And let me see minimum कितना कैंट में रखता हूँ कि 150 मुझे मिलता है. So no. So I have designed. I said कि if I keep a radius of 1750, cant is 90, length of transition 110, I can get the speed potential of 150 because मैं transition 110 से ज़्यादा दे नहीं पा रहा था for whatever reason. It is my designer's choice. मैं दे नहीं पा रहा था. This software suggests that अगर आप 160 चाहते हो तो आपको 105 and 140 देना पड़ेगा. Then you can get speed up to 160 kmph. Right? So we have an existing curve and we have a new curve. ये दो कर्व हमने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये कर्व चाहिए. मेरे पास सारे चॉइस हैं, सारे ऑप्शन हैं. आई हैव डिजाइन माय न्यू कर्व. बट सर्टेनली आई विल लाइक टू नो कि मेरी शिफ्टिंग कितनी हो रही है कर्व. मैंने डिजाइन तो कर दिया, ऐसा तो नहीं है बहुत एब्रप्ट शिफ्टिंग हो रहा है. सो फॉर वॉट एवर यू हैव डिजाइन यू कैन कैलकुलेट द शिफ्टिंग बाई क्लिकिंग द बटन एट द बटन. यहाँ पर बॉटम पे एक बटन है, आप इसको क्लिक करो. द मोमेंट यू क्लिक यू विल फाइंड दीज टू विल बी एक्टिवेटेड. ये दो साइड में दो चीजें एक्टिवेटेड होंगी. पहला वाला ये लेफ्ट वाला क्या कहता है, एग्जिस्टिंग कर्व इज आल्सो परफेक्ट. मींस ये जो कर्व है ये एग्जिस्टिंग कर्व है. यू आर नॉट टेकिंग दिस एज ए डिस्टर्ब कर्व. ये एक आइडियल कर्व फॉर दिस रेडियस एंड दिस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन. अगर वो आइडियल कर्व होता एंड योर फाइनल कर्व इज आल्सो एन आइडियल कर्व, नॉर्मली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी व्हेन यू आर सिंपली एस्टिमेटिंग या कंस्ट्रक्शन में आप कोई कर्व को चेंज करना चाह रहे हो तो इनिशियल कर्व इज आल्सो आइडियल एंड फाइनल कर्व इज आल्सो आइडियल. सो इन दैट केस व्हाट इज द शिफ्ट एट द क्राउन and start of curve going to be for this change in transition and change in radius. So what you will do, you will click this one. इसको यहाँ पर क्लिक करोगे. आपने इसको जैसे ही क्लिक किया, this is your existing curve and this is a new design curve and you want shift between these two curves. इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने के लिए क्या शिफ्टिंग हो रही है? Initial potential was 95 kmph, final potential is 105 kmph and these are the radius and parameters जो existing और new parameters. So when you are going for this kind of calculation, this software will ask you either of these three values. चाहे तो आपको सम ऑफ वर्साइन ऑफ एग्जिस्टिंग कर्व मालूम होना चाहिए जिसकी बेसिस पे आप निकाल रहे हो, या डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा मालूम होना चाहिए, या लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ कर्व. ये तीन में एक डाटा आपको देना पड़ेगा. ठीक है ना. तो जो भी डाटा आप देना चाहते हो उसको आप क्लिक करो. सो इन दिस केस लेट मी सी, मैं कहता हूँ मुझे सम ऑफ वर्साइन मालूम है. लेट मी अज्यूम समथिंग. मैं इसको 500 डाल देता हूँ. एग्जिस्टिंग कर्व का 500 मैंने डाल दिया. देन द मोमेंट यू क्लिक दिस वन, this is what it tells you. It says that your shifting at crown, this shifting at crown is going to be 1.21266 इतना मीटर होने वाला है. Your shift of ST, this shift of ST is going to be 68.808. This shift at this location is going to be 68.0874. ये आपकी shifting होने वाली है, assuming that initial curve was also an ideal, non-ideal profile, final curve is also of ideal profile. So you get the shift at different locations. ये सॉफ्टवेयर आपको शिफ्ट डिफरेंट लोकेशंस पे बता देगा. नाउ द सेकंड सिचुएशन कुड बी कि अब आपको क्या है कि यू नो द वर्साइन ऑफ योर कर्व. आप एग्जिस्टिंग कर्व के टर्म में बात करो कि मेरी कर्व आज के डेट पे यहाँ है. इट इज नॉट एन आइडियल कर्व. आज के डेट पे मेरी वर्साइन क्या है. अगर आप आइडियल कर्व भी लेना चाहते हो और आपको आइडियल कर्व की वर्साइन मालूम है, देन इट विल गिव यू शिफ्ट एट एवरी स्टेशन. हर स्टेशन पे कितना शिफ्ट आ रहा है ये सॉफ्टवेयर आपको दे देगा व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम this existing curve to this new curve. So the moment you click this one, you can say again two of these are highlighted. इन दोनों में क्या है? पहला ये कहता है कि you know the existing वर्साइन of your curve, जिसकी शिफ्ट आप निकाल लो उसकी आपको पूरी वर्साइन मालूम है. आपने फील्ड पे वर्साइन मेजर कर लिया है. And you also know the original design curve. ओरिजिनल डिजाइन कर्व का मतलब क्या है?
ओरिजिनल डिजाइन मीन्स जब इनिशियल कर्व ले हुआ हो, यू नो द जीरो स्टेशन एंड यू नो द लास्ट स्टेशन ऑफ द कर्व, so you know the center position of your original curve. So you would like your new curve, which is again going to be an ideal curve. जब भी आप lay करो, you will try to lay an ideal curve, so that center line of these two curves are same. जो original design curve रहा होगा कभी भी जब initially lay किया होगा, और आपकी जो नई curve है, ये दोनों एक ही center position पे रहे. तो आपको ये कहता है कि this is the best design, recommended design, and you must tell your this software your original stations. हो सकता है आपकी स्टेशन 0 to 32 ओरिजिनल थी. आज के डेट में आपने मेजरमेंट किया -4 से 38 स्टेशन तक आपने मेजर किया. Then you must know that original was from 0 to 32. If you know this value, kindly go to this calculation and you click this one. The moment you click this one, it is giving you the new curve that you are planning to design. ये न्यू कर्व है और इसकी वर्साइन जो हमने 1750 दिया था, इसकी वर्साइन इतनी है. ट्रांजिशन लेंथ हमने 110 लिया था, तो ये has taken the transition length as 110. And it asks you kindly import your existing file. Existing file को Excel file जिसमें आपने वर्साइन लिख रखा है, kindly import this. And this Excel file should be in this format. ये right side में जो एक column बना हुआ है, you can see this is the existing curve वर्साइन Excel file format. ये right में लिखा हुआ है. So that means firstly it has to be in sheet 1 of that Excel file पहला, and it has to be in this format, station and वर्साइन. इस format में आपको ये डाटा उसमें फीड करके रखना है एक्सेल फाइल. सो लेट मी टेक वन एक्सेल फाइल. मैं एक इंपोर्ट कोई भी एक्सेल फाइल लेता हूँ अगर मेरे पास कुछ होगा तो. लेट मी टेक दिस फाइल. आई हैव टेकन एनी फाइल एट रैंडम. ये एक्सेल फाइल है. आई ओपन दिस फाइल. सो दिस इज नाउ कलेक्टिंग दिस डाटा. ये सारे फाइल को जो आपकी फाइल है उसको यहाँ दिखाएगा, स्टेशन एंड एग्जिस्टिंग वर्साइन. ये एग्जिस्टिंग वर्साइन आपका, इट इज कॉपिंग फ्रॉम दैट एक्सेल फाइल एंड यू कैन चेक वेदर इट इज द सेम फाइल और नॉट. So 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65. So total 66 stations are there. But this is for the existing case. Existing मतलब आज के डेट पे जो आपने मेजर किया है. Last station is your 62 station. Maybe your original curve, I don't know क्या रहा होगा इसमें. But let this original curve be from 0. ये 0 स्टेशन से रहा होगा पहले. And this side is 62, so वर्साइन से तो पता नहीं चल रहा है. But let this be स्टेशन नंबर 60 और 59 में लेता हूँ, 3 स्टेशन. So ओरिजिनल कर्व का स्टेशन मैं कहता हूँ कि ये 0 to 59 रहा होगा. Let me take this as an example. ठीक है ना? So I take this as an example. Then I want my shift at every station. So you calculate shift. You click this one, calculate shift. It says it is doing some adjustment. क्योंकि आपकी कर्व हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो. So it says that वर्साइन एडजस्ट, ये कुछ वर्साइन को एडजस्ट करेगा क्योंकि अदरवाइज ताकि लास्ट स्टेशन पे मैच कर जाए, सेंटर पोजीशन मैच कर जाए, सारे मैच कर जाए, तो इट विल रिक्वायर सर्टेन एडजस्टमेंट. एंड दिस एडजस्टमेंट वैल्यू इट इज शोइंग एज 2.33456. कुछ एडजस्टमेंट इसको वर्साइन में करने की जरूरत है. ठीक है ना? बट इट सेज दैट फॉर बेटर कर्व कीप एडजस्टमेंट विद इन 3 बाय चेंजिंग VLL. अगर आपको लगता है कि थोड़ा इसको मॉडिफाई करना है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, नॉर्मली ये 3 के अंदर रखेंगे तो आपकी कर्व का लेआउट बहुत अच्छा बनेगा. इट इज़ व्हाट इज सजेस्टेड बाय दिस सॉफ्टवेयर. So you can come here at the edit button और थोड़ा बहुत इसको modify कर सकते हो. But in this case, it is within 3, so I say okay, it is fine. I say okay, yes, proceed. Want to proceed? Please click show shift button. आप इसको okay करो. Yes, I have done my calculation. I am fine. मेरी limit. तो I say अब now show shift कितना आ रहा है. You click this one. The moment you click this one, this is the curve it is giving. Initially ये curve ये था. और अब आपने उसका जो भी वर्साइन रहा होगा, ये दिखता है कि ये बहुत ही छोटा कर्व है क्योंकि आपने वर्साइन बहुत ही ईज आउट कर दिया. इसका वर्साइन मुझे नहीं पता कितना रहा होगा, मैं तो ऐसे रैंडम ले लिया था. यू कैन सी दिस. सो दिस इज द न्यू कर्व यू आर गोइंग टू गेट. ये फाइनल कर्व आपको ये बना करके देगा ये. और इस कर्व और स्लूज एट डिफरेंट लोकेशन ये दिखा रहा है. जो फाइनल कर्व बन रही है इसकी सेंट्रल पोजिशन की वर्साइन इसने एडजस्ट करके 28.32 कर दिया. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इसने वही रखा 110 मीटर. Total length of curve is now 1750. Radius is 1750 हमने डाला था. This radius is now modified to 1765.48. थोड़ा radius को increase किया इसने. And if you see the slews at different location, इस curve को achieve करने के लिए the value of slews has become very high. जो हमने curve initial लिया था और जो final में achieve करना चाह रहा हूँ, you can see this slew value has gone up to 125 meter. ये करीब यहाँ देखो ये millimeter में दिया हुआ है. So this value has come as 125 meter. And you can get this data in Excel. Simply you create this, click this one, create Excel file,
it will ask you file. So let me say I take this as class on date. Today's date क्या है 17 is. So I'll go to this, click this one, it will save this file. Yes, file को save करेगा कहीं and you can get this result in Excel. So इसमें मैंने बहुत चेंज किया इसलिए number of stations has increased drastically. काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया स्टेशन. And you can see these stations. ये भी जो final file आएगा. Curve length has drastically increased. काफ़ी बड़ा length हो गया है. Let us see where this result, when this result comes in Excel. So it is not that this is the only curve possible. There can be many curves, but this software is suggesting you one curve, and if you go for an ideal final result, ये करीब करीब आपके रिजल्ट इसी के आसपास आएंगे. अगर मान लो आप, yes, it has saved this file. So let me see where this file has been saved. First has been saved here. So curve class this much. Yes. So this is the result. Station you can see I recorded only up to -3. ये अब कह रहा है कि फाइनल इनिशियल स्टेशन -57 चला गया जो आपने वर्साइन दिया है. इनिशियली वर्साइन यहाँ से यहाँ तक इसको 0 मान लिया इसने, और इनिशियली इस कर्व की वर्साइन 93 रही होगी. सो अगर ये वर्साइन 93 रहेगी तो रेडियस ये करीब 600 के आसपास रहा होगा. नाउ आई हैव इंक्रीज द रेडियस टू 1750, 28.32 कर दिया है. सो इन द प्रोसेस माय कर्व हैज बिकम वेरी लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग हो गया. योर सिचुएशन कैन बी डिफरेंट. हो सकता है आप 1750 की जगह 875 करो, इतना ज़्यादा नॉर्मली चेंज नहीं करोगे. बट यू आर गोइंग फॉर सच बिग चेंजेस, you can see the slews you are getting 127 meter, 128, 129 meter, and this is the final curve you are going to get. V is 28.32, transition length is 110, curve length is 1730, and radius is 1765. So this software gives you the final curve, but you can go for different hit and trials. ये आपके सारे आपके डिजाइनर के हाथ में है. आप एक कर्व बनाए, आपको पसंद नहीं है, आपने दूसरा कर्व बनाया, so you can finally decide कि मुझे कौन सा कर्व चाहिए after going for many hit and trials. ठीक है ना. So this is what this software is. This was the first part. Second part was, if suppose I don't know the first station and last station, अगर मुझे नहीं मालूम है, what this software does is, in the same curve what it will do, जो existing curve है उसकी एक वर्साइन डायग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो निकालेगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो निकालेगा वर्साइन डायग्राम की, and the final curve it will align about this center line of your existing वर्साइन. क्योंकि you are not telling the software आपने जो रिकॉर्ड कर रखा है वो एक्चुअल किस सेंटर लाइन के पोजीशन के अबाउट आप कर्व को प्लेस करना चाहते हो. सिंस यू आर नॉट टेलिंग दैट, सो इट विल अज्यूम द सेंटर लाइन ऑफ दिस वर्साइन डायग्राम एज द सेंटर लाइन, उसके अबाउट ये कर देगा. यू क्लिक दिस वन, सेम थिंग अगेन यू इंपोर्ट दैट फाइल. रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नॉर्मली नहीं आएगा. आई टेक द सेम कर्व, पुणे ओरिजिनल, एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ प्लेसिंग योर इनिशियल स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन. उसका कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है. So since you are not getting any option, जब आप इसको बनाते हो, it will take that curve and then finally it will calculate the shift. So let me calculate the shift. इसमें चूंकि ये CG के अबाउट ले रहा है, normally this error is going to be very less. ये ज़्यादा अच्छा कर्व देगा आपको. So yes, show the shift. And this is what it is given. इसने फिर एक और कर्व दिया आपको, and if you see the slews, ये करीब उतना ही आएगा. थोड़ा हो सकता है 19-20 हो, इसमें 127-28 करीब उतना ही आ रहा है. इसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा मिलीमीटर में. So otherwise both are going to give you almost similar kind of result. And you can see your वर्साइन is going to be 28.32, ये radius 1765.48, and this is what you are. Similarly you can take this into Excel file and you can decide कि कौन सा कर्व आपको लेना है. So either of the curve can be taken. ठीक है ना. So this is the flexibility of this software. You can use this software in your case, since at most of the places we are going for increasing the speed potential of our curve. So this software can be very handy, right? Would you appreciate क्या हो रहा है? And coming to the third part, this is points and crossing on curve. अगर है तो मेन लाइन की स्पीड कितनी हो जा रही है? This is another calculation. So let me take this case. अगर मैं 2 डिग्री कर्व लेता हूँ, you can see these are basic data, cant access, cant deficiency, maximum cant that can be permitted, and these are turnout details.
1 in 8.5, 1 in 12, 1 in 16, 1 in 20, लीड रेडियस क्या है, स्पीड परमिटेड क्या है, स्पीड पोटेंशियल क्या है. वी कैन एडिट दिस. कल के डेट पे हो सकता है कि स्पीड पोटेंशियल में बोलूँ 1 in 12 का आई वांट टू मेक इट 35 और 40. सो यू कैन एडिट दीज डाटा. आप इसको एडिट करके कुछ भी डाटा भर सकते हो, रेडियस भी चेंज कर सकते हो. सो लेट मी एज्यूम कि जो आज के डेट पे वही है. सो फॉर 2 डिग्री कर्व ऑन मेन लाइन आई एम टेकिंग 1 in 12 टर्नआउट, 1 in 12 टर्नआउट लेता हूँ और मैं मेन लाइन की स्पीड निकालना चाहता हूँ. सो यू कंप्यूट दिस. It says your main line speed is going to be 115 kmph velocity on main line, and your cant you can provide is 115 millimeter. अगर ये contrary flexure में ये मैं डालता हूँ, same I take a 2 degree curve and then I provide 1 in 12 in contrary flexure. It says that your maximum speed permitted can be 100 km per hour for main line and your cant is going to be 60. So you can check these values. These values normally I don't think गलत आएगा, सही आ रहा है, कई बार चेक हो चुका है. But again, this version is a beta version which has been loaded at Edison website for the field people to comment.